प्रिंसिपल है हमारे बाबू से तो उसी ने कॉल किया सही कहा
Hello. 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 Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sukirti. Uh, are you able to hear me? Yes, yes. We are able to hear you. I think she is not able to hear. Sukirti, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Okay, your voice is very low. If you can check your audio, please. Just a second. Okay. Something is wrong with the. Can you hear me now? Is it audible? No, it's still low. Okay. Just give me 2 seconds. Sukirti, if you can speak and we can check the audio. Just a second. अभी आ रही है आवाज? Can you please check? बहुत लो है. अचला मैम, आपको भी लो ही आ रही है? बहुत, हाँ, बहुत लो है. Just give me just 2 minutes, huh? Hello. Is it okay now? No, no, Sukirti. Still. Still very low. ऊपर देखो आइकन में.
थोड़ा एक्सेस दिखा रहा है बट हेलो हेलो अंकिता So Kirti, we can hear you, but your voice quality is not good. अभी इज इट ओके No, स्टिल no, we can't hear you. It's very low. You can remove the the ear cords that you have put and try speaking on the laptop itself, I think. అయ్యో మేడం మేడం I request all the participants to please mute their microphones. नहीं ब्लूटूथ किसमें होता है सेटिंग्स में होगा म्यूट करो पहले Is she comfortable now? Kirti? So Kirti, are you able to connect? अंकिता just give me 2 minutes हाँ Okay. हेलो अंकिता Yeah, so Kirti. Yeah, I can also. हेलो इज इट ओके नाउ Yeah. Better. You'll have to be loud, but this time as well. ओके 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 ठीक है Please switch on your video as well. And यस यस आई एम डूइंग दैट Ashla ma'am, is it better now? We can- Now it's better. Definitely better. So, नमस्कार आप सभी को। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत आज महिला अध्ययन केंद्र गृह विज्ञान संस्थान के द्वारा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का विषय है लोकल फॉर पोषण वूम टू एल्डरली, अर्थात पोषण के लिए लोकल गर्भ से बुढ़ापे तक। मैं डॉक्टर अंकिता गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आहार एवं पोषण विभाग, गृह विज्ञान संस्थान खंडारी आगरा, आयोजन समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के महिला अध्ययन केंद्र तथा प्रज्ञा परिषद प्रज्ञा प्रभा ब्रज प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में आज के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण कुलपति जी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके हैं।
मैं तत्पश्चात आमंत्रित करती हूँ गृह विज्ञान संस्थान की निदेशिका एवं महिला अध्ययन केंद्र की प्रभारी प्रोफेसर अचला गक्खड़ जी को कि वह आज के आयोजन के ऊपर प्रकाश डालें। नमस्कार। Thank you, Ankita. Namaskar. This is my pleasure to welcome all the people around connected to us from different parts of the country in this webinar. It is local to Poshan and womb to elderly. I, Professor Achla Gakkhar, in charge, Mahila Kalyan Kendra and Director, Institute of Home Science, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra, extend a warm welcome to all on behalf of the team of the organizers, the Institute, the University, and the technical team led by Professor V.K. Saraswat. It is my privilege to welcome our Honorable Vice Chancellor, Sir, on this occasion. But this is very sorry to inform that due to some of his very busy schedule, he is not able to join today with us. But his blessings and wishes are always with us to make successful this event. न्यूट्रिशन, पोषण हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, चाहे वह बाल्यावस्था हो या अन्य कोई और अवस्था। उचित भोजन शरीर को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यकता है। यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसमें हम अपने शरीर को एक इम्प्रूवमेंट की तरफ लाते हैं, इम्यून सिस्टम हम अपना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एजिंग इफेक्ट को हम कम करते हैं, हमारी बॉडी को एक अच्छी एनर्जी मिलती है और लाइफ स्पैन हमारा लंबा होता है। दिस इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी सिस्टम. Women is the key of a family. If a woman is educated in all respects, the family will be educated too. मिशन शक्ति फेज 3 सरकार का वह प्रयास है जिसमें प्रत्येक बालिका स्वस्थ हो, शिक्षित हो एवं वह आत्मनिर्भर हो। आज के इस वेबिनार में इसी क्रम को जारी रखते हुए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अंतर्गत आज हमारे बीच में डॉक्टर सुकीर्ति निगम हैं, जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके द्वारा दी जाने वाली जानकारी से हम सभी लाभान्वित होंगे। A very warm welcome to you, Dr. Sukirti Nigam. Over to you. I'll just give a brief introduction of our speaker for today. Sukirti Nigam is a dietitian working with the Indian Air Force Command Hospital, Bangalore. Her areas of interest are clinical nutrition, weight loss diet, GI surgery nutrition. She has a professional experience of around, I guess, more than 10 years now, and she has been working from June 2014 till present as dietitian in Indian Air Force, currently posted at Command Hospital, Air Force, Bangalore. From June 2012 to February 2013, she worked as a March 2011 to May 2012, she worked at BLCC Institute as a lecturer in nutrition and dietetics, faculty for PG diploma in nutrition and dietetics, 6 months training in dietetics from All India Institute of Medical Sciences. She is also completed. Her achievements include she has organized obesity support group meeting for bariatric surgery patient at AIIMS, New Delhi. She has written a research paper on the effect of stevia products on blood sugar level of NIDDM patients, published in Plant Archives. She has won first prize in quiz competition held during National Nutrition Week from 1st September to 7th September at CSA University, Kanpur. She has participated in seminars on recent trends in nutrition held at CSA University, and she has also undergone short-term training on fruits and vegetable preservation. She has participated as a dietitian in diet counseling camps held during Nutrition Week from 1st September to 7th September. She has also won third prize in national group competition. Our today's speaker,
Further, I would like to say something about Mission Shakti program and the Poshan Pakwada, the Poshan Maha, which has been renamed as. So Mission Shakti Phase 3 हेतु महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने माह अगस्त से दिसंबर 2021 तक विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज बालिकाओं के स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण के प्रति जागरूक करने हेतु वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण सितंबर माह को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। पोषण अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण अभियान एक जन आंदोलन है जिसमें स्थानीय निकायों, राज्य सरकारें तथा सामाजिक संगठन एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की समावेशी भागीदारी शामिल है। पोषण अभियान छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ साथ पति, पिता, सास और समुदाय के सदस्यों सहित परिवार के सदस्यों के पोषण संबंधी जागरूकता और जवाबदेही को बढ़ाने का सकारात्मक प्रयास है। पोषण माह का उद्देश्य पोषण अभियान के समग्र लक्ष्यों को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से त्वरित रूप से अर्जित करना है। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की स्पीकर सुकीर्ति निगम जी को कि वह अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। सुकीर्ति, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। Okay. Yeah, I'm sharing my screen. Am I visible? Yes, you can put it on full screen. Yeah. Is it okay now? Yes, Sukirti, you can continue. Okay. So सबसे पहले आप सभी को मेरा Please be a little loud. Sukirti, just I'll request you to be a little loud. Okay. So सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं डॉक्टर अंकिता और डॉक्टर अचला मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आज मैं यहाँ पे आकर के आप सबके साथ इंटरेक्शन कर सकूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है लोकल फॉर पोषण वूम टू एल्डरली। और आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो स्टार्ट किया गया था वो 1982 में स्टार्ट किया गया था। और उसका पर्पस ये था कि सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हमारे इंडिया में उन सबको न्यूट्रिशन के प्रति यानी कि पोषण के प्रति जागरूक करना। और अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी ने भी 2018 में 8 मार्च के दिन इस पूरे मंथ को ही न्यूट्रिशन माह के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए इसको लॉन्च किया है। इसका भी पर्पस वही है कि हम इस जो भी हमारी जो जनरेशन आ रही है उनको न्यूट्रिशन के प्रति जागरूक करें ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो उससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि अभी आपने जैसे कि आपको पता है कोई भी वेबिनार हो, कोई भी ऑनलाइन क्लास हो, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड अगर टॉपिक है वो बिना एक चीज के अधूरा है जो जिससे हम पिछले 2 साल से जिससे हम जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि है कोरोना वायरस कोविड-19। और इस दौरान हमने इतना कुछ देखा है। हमारी इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन शैली में इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं कि हम बिना मास्क के घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। हर 2 घंटे में हमें हाथ को धोना है अपने। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमारी जीवन शैली में आया है इस कोविड-19 की वजह से। और इसकी वजह से एक फायदा भी ये हुआ है कि हम अपनी हेल्थ के प्रति और भी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। लोग
हर तरह से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तरह तरह की डाइट्स फॉलो करने के लिए तत्पर हैं। वो हर तरह के फ्रूट्स को खाना शुरू कर चुके हैं, तरह तरह के काढ़ा को पीते हैं, तरह तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं टू इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी। तो इस कोविड-19 के दौरान कभी आपने ये सोचा कि जब दूसरी वेव आई तो बहुत से लोग ऐसे थे जो कि ऑलरेडी हेल्थी लाइफस्टाइल को अपना चुके थे, उसको फॉलो कर रहे थे और तरह तरह के काढ़े सप्लीमेंट्स ले रहे थे। उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे थे जो इससे जो कि इसके चपेट में आए कोरोना वायरस के। ऐसे बहुत से फिल्म स्टार्स थे जो कि इतने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, इतना कुछ अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोरोना वायरस को के स्ट्रगल किया, हॉस्पिटल तक पहुंच गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतना कुछ चीजें करने के बाद भी उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, सफर करना पड़ा और हॉस्पिटल में रहना पड़ा? उसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो आपके डाइट अभी जो आप खा रहे हो, सिर्फ वो डाइट आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करती है, बल्कि आज से 20 साल पहले, बल्कि और भी ज्यादा पहले, जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, तब आपकी माँ ने किस तरह की डाइट खाई, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में थी, उसका स्ट्रेस लेवल क्या था, वो सब चीजें भी आपके इम्यूनिटी को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। क्योंकि जब आप पैदा होते हो, है ना, आपका न्यूट्रिशन जो है वो आप माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो चुका होता है और आपके जो जेनेटिक चीजें हैं वो सब आपके न्यूट्रिशन पे, आपके माँ के आहार पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो न्यूट्रिशन है वो आपका बहुत ही अर्ली स्टेज जो लाइफ की है वहां से स्टार्ट हो जाता है। और तभी कहा जाता है कि हमारे लिए, हम बात करें एक जनरल पॉपुलेशन की, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी महिलाओं के न्यूट्रिशन को लेकर के बात यहाँ उठती है कि उनका न्यूट्रिशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर मदर्स। वही आगे जाकर के एक बच्चे को जन्म देंगी जिसका पूरा हेल्थ फ्यूचर जो है वो अपनी माँ पे डिपेंड करेगा। उसकी गर्भावस्था के दौरान उसने किस तरह का आहार खाया और उससे गर्भावस्था से भी पहले उसकी माँ की हेल्थ कैसी थी, उन सब चीजों पे उसके आने वाले बच्चे का भविष्य निर्भर करेगा। तो इस कोविड के सेकेंड वेव के दौरान इतने लोगों ने जो अपनी जवानी गंवाई है, इतना कुछ हेल्थ प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी, वो इसीलिए क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी था वो इतना अच्छा नहीं था। बिकॉज उन्होंने अपने बचपन में, जब वो गर्भ में थे, जब उन्होंने अपनी ग्रोइंग एज में थे, तब उन्होंने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया और साथ ही अपनी जो हेल्थ से, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो चीजें थी उनको इतना ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारा पर्पस ये है कि आज की जो जनरेशन है उसको हम तैयार करें कि वो आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन हो उनको एक अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करा सके। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो महिलाएं हैं वो अपने न्यूट्रिशन का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें और उसका जो भी अवेलेबल उनको चीजें, रिसोर्सेज है, उसके अकॉर्डिंग अपने डाइट को सुनिश्चित करें। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारे जो रिसेंट एविडेंसेस हैं वो भी यही कहते हैं कि यूट्रस में ही बहुत तरह की जो डाइट होती हैं वो आपकी आने वाले, आपके बच्चे की जो आने वाली लाइफ है उसको, हेलो प्लीज थोड़ा सा म्यूट करके रखें पार्टिसिपेंट्स। तो यूट्रस में जो आप बच्चा है उसके लिए जो डाइट माँ खा रही है वही आगे उसको किस तरह की डिसीजेस बच्चे को होंगी उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं कि कॉन्सेप्शन से पहले भी, जब बच्चा पेट में नहीं भी आया होता है, उससे पहले से जो माँ का आहार है, उसकी जो हेल्थ है, फिर उसके बाद जो बच्चा पेट में आ गया है, उसके बाद डिलीवरी के बाद भी जो बच्चा बाहर है, डिलीवरी के बाद पिछले आगे के जो 1000 दिन होते हैं उस दौरान उस बच्चे का न्यूट्रिशन किस तरह से है, वो आगे उसकी इम्यूनिटी को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। अगर बच्चा माल न्यूट्रिशन में है, अगर उसको सही डाइट जन्म के बाद नहीं मिल रही है, तो उसको क्या क्या हो सकता है, वो आपका लो बर्थ वेट हो सकता है, उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है और एडल्ट अवस्था में उसको डिफरेंट तरह की क्रॉनिक डिसीजेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम
अपनी महिलाओं को, अपनी जो युवा अवस्था में जो लड़कियां हैं, उनको सही एक डाइट प्रोवाइड कराएं और उनको जागरूक करें कि वो अपनी डाइट के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। इसलिए अभी जैसे कि पहले ये होता था कि न्यूट्रिएंट बेस पे हम लोग अपनी डाइट निर्धारित करते थे, लेकिन अभी जो हमारा पोषण माह चल रहा है उसके दौरान ये डिसाइड हुआ है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच ना करके हमें फूड बेस्ड अप्रोच रखनी है, ताकि क्योंकि हमारे जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, बेसिक जो 3 फूड ग्रुप्स हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप है, प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप है, एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप है, इनके अगर हम इन तीनों जो फूड ग्रुप्स हैं, इनको अगर अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो अपने आप ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रोटीन, कैलोरी, आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स है, वो हमें अपने आप ही पूरे हो जाते हैं हमारी डाइट में। इसलिए इन तीनों फूड ग्रुप्स को ऐड करना बहुत जरूरी है डाइट में, जिसके सोर्सेस जैसे कि आप देख सकते हैं, एनर्जी रिच फूड के सोर्सेज जो हैं वो होल ग्रेन सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, घी, नट्स, ऑयल सीड्स एंड शुगर है। बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स जिसमें कि बेसिकली प्रोटीन रिच जिसे हम बोलते हैं फूड ग्रुप है, उसमें पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एंड पोल्ट्री आता है। प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, विटामिन एंड मिनरल्स जिसको मिलकर के बनाते हैं, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश फ्रूट्स आते हैं। अब आता है वूम टू एलर्जी, जैसे कि अभी हमने बात करी कि हर दौरान जितनी भी जीवन की अवस्थाएं हैं, चाहे वो इन्फेंसी हो, चाहे ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन हो, टीनेजर्स हो, एडल्ट्स हो या हमारे सीनियर सिटीजन्स हो, इन सारी ही अवस्थाओं में हमारे जो ये हमने जिन फ्रूट ग्रुप्स की अभी बात करी है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो और उसके साथ ही साथ जो अलग और फैक्टर्स है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है उनका जेंडर, कि वो मेल है या फीमेल है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं या हैवी एक्टिविटी वर्कर हैं, और साथ साथ उनके साथ और क्या फिजियोलॉजिकल स्टेजेस हैं उनको, या और कोई किसी तरह की क्रॉनिक डिसीज है, वो फैक्टर्स भी इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हमारे इन्फेंट जो बच्चे हैं, जो जन्म के बाद की अवस्था होती है, पहले 6 महीने जो होते हैं, उस दौरान बच्चों को किस तरह का आहार देना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दौरान ही आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, सेल्स, इम्यूनिटी सेल्स बन रही हैं, वो पीरियड बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। तो सबसे पहले जो उसका 6 मंथ्स का आहार है वो कुछ ना हो करके सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए। सो ब्रेस्ट फीडिंग जन्म के 1 घंटे बाद ही शुरू कर देनी चाहिए, और उस दौरान जो कोलेस्ट्रम होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस माना गया है, और वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो उस दौरान अगर आपने इस चीज को नहीं अवॉइड किया और ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं दिया, तो आगे जाकर के बच्चे की इम्यूनिटी इफेक्ट कर सकती है। सो सिर्फ 6 मंथ तक ही नहीं, उसके बाद भी अगले 2 साल तक आप बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करानी चाहिए। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स कौन से होते हैं जो कि आप 6 महीने बाद स्टार्ट करा सकते हैं, जैसे कि घर में बनाई हुई दाल और राइस मिक्स करके, वेजिटेबल मिक्स करके खिचड़ी बना करके आप बच्चे को दे सकते हो, रागी का पॉरेज दे सकते हो, व्हीट का खीर बना के, जिसे साउथ में पायसम बोलते हैं, वो दे सकते हो, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स आपके आसपास मिलते हैं, जैसे जहाँ पे राइस अवेलेबल है वहाँ पे राइस की कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स बना के आप दे सकते हो, जहाँ पे मिलेट्स अवेलेबल है वहाँ पे आप मिलेट्स का यूज करके बच्चों को फीड करा सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग चाइल्ड। जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं उनके लिए जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं वो एडोलसेंट एज में आते हैं, और इस दौरान देखा गया है कि ओवरवेट और ओबेसिटी सबसे ज्यादा पाई जाने लगी। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और उन रीजंस में सिर्फ न्यूट्रिशनल रीजंस ही नहीं है, और भी बहुत सारे, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक रीजन है, बिहेवियरल रीजन है, और सबसे ज्यादा बड़ा रीजन ये है कि आजकल जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे टीवी सीरियल से, एडवर्टीजमेंट से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बच्चों को ओबेसिटी की तरफ धकेल रहा है। इसी तरह से जो बच्चे इस दौरान क्या होता है, ओबेसिटी या ओवरवेट केस में आ जाते हैं, वो आगे जाकर भी ओवरवेट रहते हैं, ओबेसिटी से ग्रस्त रहते हैं, और उनके अंदर तरह तरह की डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, जिसे हम हिडन हंगर भी बोलते हैं। और हिडन हंगर की वजह से वो दिखने में तो आपको चबी लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, बट अंदर ही अंदर उनके अंदर बहुत तरह की डेफिशिएंसीज हो रही होती है, और धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रही होती हैं।
अब बात करते हैं ग्रोइंग एज की लड़कियों की। इस दौरान जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि जब गर्भावस्था होती है उससे पहले भी लड़की का किस तरह का हेल्थ स्टेटस है, उसका न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, वो एनीमिक तो नहीं है, ये सब सारी चीजें भी उस बच्चे के, जो बच्चा वो आगे जाकर के जो जब वो फ्यूचर मदर बनेगी, जब वो मदर बनेगी, तो उसके न्यूट्रिशनल और इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करेगी। तो एक लड़की जो कि अभी सिर्फ 10-12 साल की है, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उस दौरान से पहले भी उसका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि जब बच्चा एक लड़की जब पैदा होती है, तो अपने साथ एग्स को, जो उसके एग्स वो आगे जाकर के ओव्यूलेशन में बाहर निकालती है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, वो उसके साथ में पैदा होती है। जब एक लड़की पैदा होती है तो 2 मिलियन करीब एग्स ऑलरेडी उसकी ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। और जब वो एडोलसेंस में आती है, 10 से 12 साल की उम्र में आती है और उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तब वो घटते घटते 40,000 कुछ हो पाते हैं, और वही काफी होते हैं उसको लाइफ लॉन्ग, जब तक उसका मेनोपॉज नहीं होता है तब तक के लिए ही वो एग्स रहते हैं। तो जो आपकी एग की क्वालिटी है वो भी आपके न्यूट्रिशन से, आपकी माँ के न्यूट्रिशन से इम्पैक्ट रहती है। तो उस दौरान, गर्भावस्था के दौरान आपका एग जो बन रहा है जब माँ के पेट में हो, उससे भी इफेक्टेड है, क्योंकि वो जेनेटिकली आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद जब आप डिलीवरी होने के बाद बाहर आ चुके हो, उसके बाद जो आपका न्यूट्रिशन चल रहा है, जब आप इन्फेंट हो, आप ग्रोइंग एज में हो, एडोलसेंट एज में हो, उस दौरान आप किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो भी आपका आगे का फ्यूचर, जब आप गर्भवती होगे, उस दौरान को भी इफेक्ट करेगा। तो इस दौरान आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप घर का बना हुआ खाना खाइए, जितने ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड कर सके उतना अच्छा है। आपको मिल्क और मिल्क से जुड़े बने हुए पदार्थों का सेवन अच्छी तरह से करना है, ताकि आपका जो ग्रोइंग एज है उस दौरान सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो बोन्स का होता है, आप हाइट गेन कर रहे होते हैं, सो वो बोन का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है। सबसे ज्यादा बच्चे ओवर ईटिंग तब करते हैं जो कि टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। सो जो बच्चे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, वो उस टाइम पे उस हंगर सेंसेशन जो उस टाइम की होती है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका कंसंट्रेशन डाइवर्टेड रहता है, तो वो उस टाइम पे ज्यादा खाना खा लेते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट कर रही है वो आजकल का फास्ट फूड, जो कि बच्चे सबसे ज्यादा खाते हैं, जो पैक प्रोडक्ट, जो चिप्स, कुरकुरे, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स पैक्ड फॉर्म में बच्चे इंडल्ज करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको ओबेसिटी की तरफ ले जा सकती हैं। तो उन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सनलाइट। आजकल के जनरेशन में हम सब एसी के कमरों में बंद हैं, और हमारा सनलाइट के प्रति एक्सपोजर बहुत ही कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आज जो हम देखा जाए, जो रिसर्च स्टडीज कहते हैं कि 10 लोगों में से 8 लोगों में विटामिन डी का लेवल कम है, और बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को, जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, उनको कैल्शियम, जो हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खिला रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन तभी होगा, उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब सफिशिएंट मात्रा में उनको विटामिन डी मिल रहा होगा। तो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सनलाइट। तो और सनलाइट का एक्सपोजर उनको तभी मिलेगा जो वो घर से बाहर अपने खेलेंगे, उनका एक्सपोजर होगा, और थोड़ा सा उनको खेलकूद में उनको मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, कभी भी बच्चों को स्टार्व नहीं करना चाहिए, है ना। प्रोटीन, एनर्जी से रिच जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम कराना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा, पुराने टाइम में हमारी जो दादी होती थी, वो बेसन के लड्डू बनाती थी घरों में, और सीरियल से बने हुए आटे के लड्डू बना करके घी के साथ दिए जाते थे। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो एनर्जी डेंस चीजें होती हैं, जो कि क्या करते हैं, तुरंत एनर्जी देने का काम करती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ बच्चे, जैसे कि मैं रूरल एरियाज की बात करूं, तो वहां पे तो हम ये बात समझ सकते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनको रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल, जिनके पास खाने के लिए फूड है ही नहीं, तो वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं। बट अभी रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग, इंडिया में जो नेशनल न्यूट्रिशन डेटा है उसके अकॉर्डिंग 40% लड़कियां न्यूट्रिशन माल नरिश्ड हैं, अंडर वेट हैं। वो क्यों? से ना सिर्फ रूरल एरियाज की, अर्बन एरियाज की भी लड़कियां अंडर नरिश्ड हैं। वो क्यों? उनके पास तो सारे साधन, अच्छे से अच्छा खाना अवेलेबल है, बट वो इस तरह से माल नरिश्ड क्यों हो रही हैं, वो एनीमिक क्यों हो रही हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन एक ये है कि जो एक बॉडी इमेज को उन्होंने पब्लिसाइज कर रखा है कि स्लिम होना इज हेल्दी।
आपको पतला जो दिखेगा वो हेल्दी है या वो सुंदर है, वो ब्यूटीफुल है। सो बहुत सी लड़कियां इससे प्रभावित होकर के सारी सुविधाएं, सारे तरह के आहार पदार्थ अवेलेबल होने के बाद भी वो खुद को स्टार्व करती हैं। वो घर का खाना नहीं खाना पसंद करती हैं, जो न्यूट्रिशियस फूड है, जो घर का बना हुआ खाना है, वो उसको नहीं खाती हैं, और जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में भी लड़कियां एनीमिक पाई जा रही हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि इस जो बॉडी पॉजिटिविटी की जो इमेज है, उसके प्रति लड़कियों को जागरूक करना चाहिए, ताकि वो अपनी सिर्फ अपने वेट को ना लेकर के कॉन्शियस लें, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के प्रति जागरूक रहें। नेक्स्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा उनको फ्लूइड्स हमें बच्चों को प्रोवाइड कराने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स से मतलब मेरा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस, जो पैक्ड फ्रूट जूसेस हैं, उनसे बिल्कुल भी नहीं है। फ्लूइड्स का मतलब यहाँ पे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, घर के बने हुए जूसेस हो गए, बटर मिल्क हो गया, इस तरह की जो चीजें हमारे लोकल आसपास प्रेजेंट रहती, उनको हमें उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर किसी तरह का डायरिया या डिहाइड्रेशन होता है, तो ORS है, और साथ में जिंक टैबलेट को हमें उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। और वाटर का इंटेक खास तौर पे 2.5 लीटर्स तक का रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आप उसको एक न्यूट्रिशियस मील कैसे बना सकते हो। तो अगर बच्चा आपके घर में है, या आप जब खुद खाना खा रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके मील्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप जब खाना खाएं तो सीरियल्स, यानी कि जो अनाज है, मोटा अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं जो सीजनली अवेलेबल हैं, उनका एक मिक्सचर तैयार करें। जैसे कि खिचड़ी हो सकता है, जिसको आप बना सकते हो, इडली सांभर हो सकता है, रोटी दाल सब्जी हो सकता है, या रोटी चावल सब्जी, चावल दाल सब्जी हो सकता है। इस तरह की जो चीजें हैं, उनको अपनी डाइट में जरूर से शामिल करें। जब मैं यहाँ पे, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे, तो मैं उनसे जब पूछती हूँ कि आप दाल कितनी बार वीक में बनाते हो, तो बहुत से लोगों का जवाब भी आता है कि हफ्ते में 2 या 3 बार ही वो दाल बना रहे होते हैं। तो इस तरह के जो चीजें हैं, दाल को अपनी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खास तौर से दाल को अपनी डाइट में डेली रूप से शामिल करना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है कि वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अलग अलग दिन आप उसको अपना सकते हैं। और जितने भी जंक फूड हैं, उनको आप हेल्दी रेसिपीज के फॉर्म में बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे बच्चे अगर बर्गर खाना चाहते हैं, तो उनको आप घर में बर्गर बना करके, होल ग्रेन जो आटा है उससे आप बना करके, वेजिटेबल्स ज्यादा ऐड करके उनको ऐड करके दे सकते हो। सोया कटलेट्स बना सकते हो, उपमा बना के दे सकते हो, घर में होल व्हीट का पिज्जा बना करके उसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और होममेड पनीर ऐड करके उनको आप खिला सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका पोषण फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी है, उस दौरान माँ का आहार डिपेंड करेगा कि उसके आने वाले बच्चे की हेल्थ कैसे होगी। साथ साथ माँ की हेल्थ तो उस पर डिपेंड करती ही करती है। तो हमेशा आपने अपनी दादी लोगों को, या जो दाई माँ होती है, उनको कहते हुए सुना होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 2 लोगों के बराबर खाना खाना है, क्योंकि आपको अपने लिए भी खाना है और अपने बच्चे के लिए भी खाना है। लेकिन 2 लोगों के लिए खाना इस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आपको एक न्यूट्रिशियस मील लेना है, जिसमें कि, क्योंकि आपके दौरान अभी क्या हो रहा है, आपको अपने बच्चे को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूड आपको अपनी डाइट में ऐड करना होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी बहुत तरह के चेंजेस से गुजरती है, तो उस चेंजेस के दौरान कभी कभी क्या होता है कि माँ को वॉमिटिंग हो रही होती है। इनिशियली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उस दौरान नौशिया, वॉमिटिंग, बहुत तरह की फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं। तो उस दौरान आपको ध्यान में रखना है कि वॉमिटिंग और नौशिया की फीलिंग से वजह से आपका जो टोटल इनटेक है वो इफेक्ट ना होने पाए। जैसे मॉर्निंग सिकनेस इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी। तो मॉर्निंग सिकनेस जब आपको मॉर्निंग में हो रही हो, तो उस टाइम पे आपको किस तरह के लाइट फूड अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आप स्टार्व ना करो। इनिशियल जो आवर्स हैं डे के, उस दौरान आपको जैसे बटर मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, सोक्ड नट्स हो गए, इस तरह की चीजें आप उस टाइम पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि जो इनिशियल जो डेज के जो इनिशियल आवर्स है, जिस टाइम पे आप मॉर्निंग में सिकनेस फील कर रहे हो, नौशिया फील कर रहे हो, उस दौरान आप उसको ऐड करके अपना न्यूट्रिशन दिन भर का कंप्लीट कर सको। आयोडीन डेफिशिएंसी जनरली अगर इस दौरान होती है, तो उस दौरान स्टिल बर्ड्स, अबॉर्शन, इस तरह की चीजें जनरली देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा जब भी प्रेगनेंसी ही नहीं, नॉर्मल टाइम में भी आयोडाइज साल्ट का यूज करना जरूरी है।
नेक्स्ट आता है कैल्शियम का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हो और लैक्टेटिंग फेज में हो। एक वुमन अगर लैक्टेटिंग फेज में या प्रेगनेंसी में है तो उसे कैल्शियम रिच चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा आपका कैल्शियम का इंटेक अच्छा होगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम का स्टोरेज उतना अच्छा होगा, और आफ्टर डिलीवरी और इवन लैक्टेशन के दौरान भी आपके ब्रेस्ट मिल्क में भी कैल्शियम का सिक्रेशन अच्छा रहेगा, तो आपका जो बेबी है उसको भी कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा, और आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे हैं उसके लिए भी जो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ ये बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम भी करता है। तो अगर आप ग्रोइंग एज में हैं और आप एनीमिक हैं तो भी क्या होगा, आपकी जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो भी आप एनीमिक ही रहोगे, और वो आपके बच्चे की लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एनीमिया में सफर कर रहे हो, आपकी बॉडी में खून की कमी ऑलरेडी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही, इवन पहले से ही आयरन रिच फूड को आपको एक लड़की को खास तौर से अपनी डाइट में ऐड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में अगर आप आपको भूख लग रही है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा करके कई बार दिन में खाएं, और एनर्जी डेंस और न्यूट्रिशन डेंस चीजों को अपनी डाइट में ऐड करें, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गए, स्प्राउटेड दाल्स हो गई, फर्मेंटेड फूड हो गए, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। और इस दौरान अल्कोहल और टबैको का इंटेक ना करें, जो कि बच्चे और माँ दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की मेडिसिन को बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें, और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई आयरन और फॉलिक एसिड, कैल्शियम की सप्लीमेंट्स को जरूर से ध्यान से अपनी डाइट में शामिल करें। अब बात करते हैं पोषण फॉर एक एडल्ट पर्सन के लिए। एक एडल्ट पर्सन के दौरान क्या होता है, अब उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंट हो चुकी है, अब आगे उसको ग्रो नहीं करना है, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक एडल्ट के लिए अपने न्यूट्रिशनल लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने डेली की दिनचर्या को नहीं ठीक से कंट्रोल करते हैं या मेंटेन करते हैं, तो आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम। अगर आप न्यूट्रिशन लेवल्स को अपने ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंटेक ज्यादा कर रहे हैं एडल्ट एज में, तो इस तरह की जो आप ओवरवेट होने के आपके चांसेस बढ़ते हैं, और ओवरवेट होने के साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां साथ में आती हैं। इसलिए हमेशा एक एडल्ट को ध्यान रखना चाहिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइबर वाली जितनी भी चीजें हैं उनको अपनी डाइट में अच्छे से इस्तेमाल करें, और प्रोसेस फूड जितना भी है उसको कम से कम इस्तेमाल करें। वंस इन 15 डेज अगर आप प्रोसेस फूड या बाहर का खाना खाते हैं, दैट इज ओके। आप टोटली सोशली कट डाउन नहीं कर सकते हैं, बट आपको ज्यादा से ज्यादा घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी डाइट को फॉलो करना चाहिए जो कि ज्यादा फाइबर रिच हो और न्यूट्रिशन से भरपूर हो। नेक्स्ट आपका आता है कि आप सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन रखिए, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, अगर आपको फैमिली, खासतौर से जब आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज या हाइपरटेंशन रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। किसी भी ऐसी चीज जिसमें कि सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे पापड़, अचार, चटनी, सॉस या पैक्ड चिप्स, नाचोस, इस तरह की जो चीजें हैं वो सॉल्ट से लोडेड होते हैं, तो इन सब चीजों का कंजप्शन कम से कम करना चाहिए, और आयोडाइज सॉल्ट को डाइट में ऐड करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ओल्ड एज पर्सन की। ओल्ड एज पर्सन में बहुत तरह के बॉडी में चेंजेस होते हैं। जिस तरह के चेंजेस एक बच्चे में हो रहे होते हैं कि उसकी बॉडी बन रही होती है, उसको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, उसी तरह से अब यहाँ पे क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ बॉडी स्टार्ट हो चुका होता है। तो सिर्फ आपका सेलुलर लेवल पे ही नहीं, आपका जो डाइजेशन है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो अगर आप किसी ओल्ड एज पर्सन से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो छोला भटूरा डाइजेस्ट करेगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डाइजेस्ट। तो उसकी डाइट उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी एडवांसिंग एज है, उसके बॉडी में जो न्यूट्रिशनल जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करने के लिए ऐसी डाइट उसको देनी चाहिए जो कि उसको इजीली डाइजेस्टेबल हो और ज्यादा से ज्यादा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके। क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है, आपकी मसल्स जो है वो वीक हो रही होती है, आपकी बोन लॉसेस हो रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी होती है। तो ये जो चेंजेस बॉडी में हो रहते हैं उसके अनुसार ही आपको उनकी डाइट का ध्यान रखना होता है। तो इस दौरान जब आप डाइट प्लान करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी डाइट कैल्शियम रिच होनी चाहिए,
इजीली डाइजेस्टेबल, जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल और इस तरह की चीजें उनको ज्यादा प्रोवाइड करानी है। इजीली डाइजेस्टेबल वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे कि आपका लौकी है, तोरई है, सीजनल वेजिटेबल्स, उनका ज्यादा कंजम्पशन रखना चाहिए। जो कि चीजें ऐसी जो कि कोल्ड स्टोरेज से आ रही हैं, वो उनके लिए डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगेन एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आप जिस तरह से सोचते हैं कि ओल्ड एज में आने के बाद लोग कैल्शियम की टैबलेट्स पॉपअप करना लगते हैं, आयरन टैबलेट्स खाते हैं, डिफरेंट तरह की एंटी एजिंग टैबलेट्स खाते हैं, या ताकत के लिए टैबलेट्स खाते हैं, मल्टीविटामिन्स खाते हैं, तो ये मल्टीविटामिन्स या ये कैल्शियम की टैबलेट्स आपको उस दौरान हेल्प इतना नहीं करेंगी जितना कि आपका डाइट जो आपने आज से 50 साल पहले जब आप एक ग्रोइंग एज में थे, उस टाइम पे जो आपकी डाइट थी वो आपको हेल्प कर रही होगी। आपने या आपको याद होगा, जो हमारे दादा दादी थे वो 90-90 साल तक जीते थे, और वो उनका जो एक्टिविटी लेवल होता था वो बहुत ही अच्छा होता था। वो अपने सारे काम खुद कर रहे होते थे, उनको कहीं जोड़ों में दर्द नहीं होता था, वो फिजिकली फिट रहते थे 90 साल की उम्र तक भी। उनके अंदर किसी तरह का कमजोरी और इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती थी। उनको कभी इस तरह की डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाली चीजें सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन है, उनमें 60 साल की उम्र में ही हमारे पेरेंट्स को जोड़ों में दर्द और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो न्यूट्रिशन था वो बहुत हद तक सफर किया है जब वो बच्चे थे, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो चुके थे जो आजकल की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो पैक्ड फूड है, प्रोसेस फूड है, इतनी मार्केट फ्लडेड है इन तरह की चीजों से, वो ही कंजम्पशन आज उनको इस तरह का न्यूट्रिशन जो लैकिंग उनकी उस टाइम में रही है, वो उसकी वजह से वो आज सफर कर रहे हैं। और अगर हम आज हमारा जो आज का जनरेशन है, अगर हम उसको सही दिशा नहीं दिखाएंगे, उनको सही तरह से एजुकेट नहीं करेंगे कि ये जो प्रोसेस फूड है उनसे आपको बच के रहना है, और जो हमारी जो लोकल फूड जो अवेलेबल है, सीजनल फूड जो अवेलेबल है, उसका कंजम्पशन आपको ज्यादा करना है, ताकि आपको ये आपके ओल्ड एज में जाकर के हेल्प कर सके। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप जो अभी खाएंगे वो आपकी ओल्ड एज में आकर के आपको हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी को और आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो जनरली ओल्ड एज में देखा जाता है कि आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, और आपको साथ साथ च्यूइंग करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है ओल्ड एज में। तो जनरली सॉफ्ट डाइट और वेजिटेबल्स का जो ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें ज्यादा सा न्यूट्रिशन ऐड करने के, आप उसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, दालों के साथ में, सीरियल्स के साथ में, और उनकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन या सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में उनको बना के देना है। और ये ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड फैट, स्वीट, ऑयली फूड, सॉल्ट और शुगर लेवल का कंजम्पशन कम से कम ओल्ड एज में किया जाए। अब बात करते हैं जो हमारे टॉपिक का पहला चरण है, लोकल फॉर पोषण। तो लोकल फॉर पोषण का मतलब यहाँ पे ये है कि एक टाइम था, जैसे मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ये बात बोली आपको, कि जो हमारे दादा दादी हुआ करते थे, उनका इम्यूनिटी इतना अच्छा कैसे हुआ करता था, उनका जो हेल्थ स्टेटस था वो 90 साल की उम्र तक भी इतना अच्छा एक्टिव वो कैसे रहते थे, उनको क्यों इस तरह की लाइफस्टाइल डिसीजेस नहीं होती थी। वो इसलिए क्योंकि वो उस आज से जो करीब आप कहेंगे कि 80 साल पहले, 50 साल पहले जब हम गांव में रहा करते थे, तब इस तरह की मेट्रो सिटीज नहीं हुआ करते थे, और हम गांव में रहते थे, या गांव में नहीं होते थे तो एक छोटे छोटे जो शहर होते थे, वो वहां पे जो खाना आता था, जो हमारा अनाज आता था, जो हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते थे, वो लोकल जो फार्म्स होते थे वहां से आते थे। लेकिन अभी क्या हो चुका है, अभी ये जो फूड सप्लाई का चेन है वो बहुत बढ़ चुका है। अभी सिर्फ फार्म से ही डायरेक्ट हमारे घरों में नहीं आता, अभी क्या होता है, अभी फार्म से वो हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर में जाता है, स्टोरेज एंड कोल्ड हाउसेस में जाता है, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर के ट्रेन के थ्रू, मालगाड़ियों के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू, कभी कभी इंपोर्ट जब बाहर से किया जाता है खाना फॉरेन कंट्रीज से, तो इवन एयर ट्रेवल के थ्रू, तब वो हमारे मार्केट और सुपर मार्केट्स में आता है। उसके बाद हम वहां से जाके परचेज करते हैं, और उसके बाद घर में लाके कुकिंग करते हैं, फिर हम उसको खाने लायक बना पाते हैं। तो अभी जो फूड सप्लाई का चेन है, जो हमारा फार्म से प्लेट तक का सफर है, वो खाने का वो बहुत लंबा हो चुका है। और इस दौरान जब आपको पता है, एक बार जब कोई भी फ्रूट है, सपोज एक एप्पल है, वो पेड़ पे लगा हुआ है, तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो पेड़ पे जब तक है तब वो मैक्सिमम है, 100% उसका न्यूट्रिशन लेवल है। बट एक बार जब वो आपने उसको पेड़ से तोड़ लिया, तब धीरे धीरे क्या होता है, उसमें कुछ सेलुलर लेवल पे चेंजेस होने लगते हैं, और धीरे धीरे जब तक वो आपकी प्लेट में
खाता है तब तक उसका न्यूट्रिशन लेवल कम हो चुका होता है। तो ये जो आपका फूड सप्लाई चेन है वो बहुत हद तक हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है फूड का उसको अफेक्ट कर रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये जो फूड चेन है उसको शॉर्टन करें। और इतना लंबा जो अभी डिलीवरी सिस्टम हमारा हो चुका है, अभी तो आजकल ये हो चुका है कि हम बिग बास्केट से और ग्रोफर से ऑर्डर करके अपने घर पे डिलीवरी करा सकते हैं। तो एक तरह से हम इसको और लेंदी कर रहे हैं, जबकि अभी जो हमारा मकसद है वो ये होना चाहिए कि हम जो अपने आसपास जो लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स है, लोकली ग्रोन जो अनाज है, उनका कंजम्पशन अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा करें। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 20th सेंचुरी में हम इस बारे में सोचते भी नहीं थे कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन हम इतना हेल्दी खाते थे क्योंकि वो लोकली ग्रोन होता था और हमें न्यूट्रिशन के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता था, और जो कुछ भी हम खाते थे उसका 100% हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हम अपनी फार्म से, अपने गाँवों से दूर होते चले गए, इसी तरह से हम अपने जो लोकल फूड थे उससे भी दूर होते चले गए। नाउ अब हमें क्यों कंज्यूम करना चाहिए लोकल फूड? जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है, वो उनका टेस्ट बेटर होता है, वो सीजनल होते हैं लोकल फूड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फूड सेफ्टी लोकल फूड में सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज कम होता है, उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस कम होते हैं, वो कहीं भी कोल्ड स्टोरेज में नहीं स्टोर किया जा रहा, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स कम होते हैं। तो उनका जो फूड सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे सेफ आप कह सकते हो कि आपके लोकल फूड होते हैं। कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम अगर सेब खरीद रहे हैं तो हम जो सबसे शाइनी सेब होता है, जो चमकदार दिख रहा है, जिसके पे स्टिकर लगा हुआ है, हम उसको खरीदते हैं। जबकि और जो जिसमें कि थोड़ा बहुत ऊपर दाग पड़े हुए हैं, ब्राउन कलर के निशान है, उसको हम नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो खराब है। जबकि जो आप सेब खरीद रहे हो, जो आपको इतना शाइनी दिख रहा है और जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, वो ऑलरेडी एक कोल्ड स्टोरेज से निकल के आ रहा है, उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग ऑलरेडी की गई है। तो वो उसका न्यूट्रिशन लेवल, और एक जो सेब बाहर रखा हुआ है जिसपे कि आपको ब्राउन निशान दिख रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन लेवल किसका ज्यादा होगा? मेरे हिसाब से उसका न्यूट्रिशन लेवल ज्यादा होगा जो कि जिसमें ब्राउन आपको निशान दिख रहे हैं, बिकॉज वो लोकल मार्केट से आ रहा है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया गया है उसको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमेशा लोकली ग्रोन फ्रूट जब आप मार्केट में जाते हो तो ऐसी चीजों को परचेज करें जो कि आपके नियर बाय फार्म से आ रही है। उनके न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और जब धीरे धीरे जब आप उसको तोड़ लेते हो तो उसके अंदर जो रैपनिंग होने लगती है, उसकी वजह से आपका जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो भी कम होता जाता है। इसलिए जो लोकल मार्केट के फ्रूट होते हैं वो 24 से 48 घंटे में हार्वेस्ट होने के बाद मार्केट में आ जाते हैं और उनका न्यूट्रिशन लेवल हाईएस्ट रहता है। लेकिन जो आपके फॉरेन जो फास्ट फूड है या जो पैक प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह की जो पैकेजिंग, जो आटा आप यूज करते हो, वो 3-3 महीने तक वो आपके स्टोरेज में ही पड़े रहते हैं। या आप जब परचेस करने जाते हो तो बहुत बार हम ऐसा देखते भी नहीं है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और वो कब हार्वेस्ट होकर के आया और कब कितने दिनों से वो स्टोर में ही पड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि जब आप एक आटा खरीद के लेकर के आ रहे हो मार्केट से, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल जो हमारे चक्की का पिसा हुआ आटा हुआ करता है उसके बराबर हो सकता है? कभी नहीं। वो आटा जो हमारे घरों में चक्कियों में पीसा जाता था उसका न्यूट्रिशन लेवल और आज जो आटा आशीर्वाद कार्ड हम पैक्ड फॉर्म में लेकर के आते हैं उसका न्यूट्रिशन लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप खरीदने जाएं तो उसका पैकेजिंग, जो उसका न्यूट्रिशन लेवल है, वो जरूर चेक करें कि वो बहुत ही रिसेंटली आया हुआ होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग उसकी रिसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लोकल फॉर पोर्शन में कि आपके और क्या न्यूट्रिशन बेनिफिट्स के साथ साथ आपको क्या करता है, इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं कि एक जो आपका ट्रैवलिंग है ऑफ फूड है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फ्यूल काफी कंजम्पशन जो एयर ट्रैवल में या मालगाड़ियों के थ्रू जो फूड आ रहा है उसका जो फ्यूल है वो उसका कंजम्पशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन बढ़ता है वो भी धीरे धीरे कम होता है। साथ में जो आपके लोकल फार्मर्स हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उनका उनको जो कल्टीवेशन वो कर रहे हैं, जो जिस तरह का जो भी क्रॉप वो कल्टीवेट कर रहे हैं उसका वैल्यू उनको ज्यादा अच्छा मिलता है,
क्योंकि बिकॉज उनके बीच में जो एजेंट्स होते हैं जो कि उनसे पहले माल को खरीदते हैं, उसके बाद फिर बड़े मार्केट में जाके माल को बेचते हैं, तो इसकी वजह से फार्मर्स को उसका जो एक्चुअल मूल्य है वो उनकी क्रॉप्स का नहीं मिल पाता है। तो अगर आप बीच के जो ये आपके बिचौलिए हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, उनको आप कट डाउन कर दोगे और डायरेक्ट ये लोकल फूड का कंजम्पशन स्टार्ट करोगे, तो जो फार्मर्स है उनका भी इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होगा। अब लोकल क्रॉप्स जो इंडिया की हैं वो क्या हैं? जैसे कि पंजाब में व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, पल्सेस, मस्टर्ड, सनफ्लावर ऑयल, सीड्स, शुगर केन, कॉटन, फ्रूट्स और वेजिटेबल, इन तरह की जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। तो इनका वहाँ के रहने वाले लोगों को इन तरह के जो क्रॉप्स है उनका कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, और आपका एरोमेटिक प्लांट्स हैं, है ना, मशरूम है, हनी का प्रोडक्शन है, इस तरह की चीजों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो हमें उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों का कंजम्पशन अच्छे से करना चाहिए। और जो हमारे जो मेन्यू प्लानिंग है, जो हमारे घर में एक गृहिणी है, उनको इन सब चीजों का, जैसे कि यहाँ की जो अभी जो युवावस्था में जो हमारी जो अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आई होप टीनेजर्स हैं, राइट? सो टीनेजर्स को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो यूपी है या जहाँ वो रहते हैं उस उनके आसपास किस तरह का प्रोडक्शन किया जा रहा है, किस तरह की क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो उसी तरह का जो मेन्यू प्लानिंग है, जो घर में जो हम खाना बना रहे हैं, उन्हीं क्रॉप्स को ज्यादा इस्तेमाल करें, ना कि जो आजकल किनोआ है, किनोआ का बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया जा रहा है, ओट्स का बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया जा रहा है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे जो लोकल फार्म्स है उसमें प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं, लेकिन हम उनका कंजम्पशन क्यों ज्यादा करने लगे हैं? क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा किया जा रहा है कि उनका कंजम्पशन हेल्दी है, वो हार्ट के लिए हेल्दी है, वेट रिडक्शन में हेल्दी है, इसलिए हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उनकी डाइट में शामिल करने लगे हैं। जबकि हमें जो अपनी लोकली ग्रोन जो चीजें हैं, व्हीट, राइस, पल्सेस, इन सब चीजों का कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए, ताकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू की हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो लोकल जो चीजें होती है वो हर किसी के लिए एक तो रीजनेबल होती हैं, वो उनका आपके पॉकेट से आपको ज्यादा एक्सपेंसेस उसके नहीं देने पड़ते, क्योंकि उसके लिए कोई पैकेजिंग नहीं है, कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं है, तो वो आपको चीप पड़ती हैं, रीजनेबल दामों में मिल जाती हैं और इजिली अवेलेबल होती हैं। और साथ साथ ये आपके फायदे के साथ साथ जो उसको बेच रहा है उसके लिए भी इकोनॉमिकली उसको हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट में भी उसको हेल्प करती हैं, उसका ग्रीन गैसेस का जो प्रोडक्शन इसको रिड्यूस करती हैं, और आपका ट्रांसपोर्ट में जो उसका फ्यूल लग रहा है उसकी बचत करती हैं। साथ ही साथ ये डाइटरी डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं, और टाइप्स ऑफ फूड जो आपके प्लेट में आ रहे हैं उसको भी कंट्रोल करती हैं, और कम से कम अडल्ट्रेटेड होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डाइट फॉलो करें उसमें लोकल जो फूड है, जो ग्रेन्स हैं, जो दालें हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं ये टॉक समाप्त करती हूँ, और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सुकीर्ति फॉर दैट एनलाइटनिंग टॉक, एंड आपने टॉपिक को बहुत कंसाइज वे में सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। I will request you to please switch on your camera so that we can take a screenshot of speakers. You can stop the screen sharing from your system, please. स्टॉप हो गया? Yes, it has stopped. If there are any questions for Dr. Sukirti, participants can unmute themselves or they can write in the chat box and she'll answer your questions. So, any questions from any of the participants?
No questions means everything was understood and सबको सब कुछ समझ में आ गया. I assume this. उन्होंने बहुत ही easy language में और हम सबको जो चीजें हम day to day life में follow करते हैं वो ही हमें बताई हैं, बट हम उन्हें भूलते जा रहे हैं, हमारी ट्रेडिशनल फूड्स को हम भूलते जा रहे हैं. So we need to bring back our traditional foods in our diet, and we have to maintain a healthy diet by following the principles which she has told us. So There is a question, Ankita. yes, क्या 2-3 months के बेबी को शाम को लाया गया मिल्क मॉर्निंग्स में दिया जा सकता है या वो हार्मफुल होगा? क्या नाम है? बेबी Am I audible? हाँ. So सबसे पहली बात तो ये कि लाया गया मिल्क देना ही नहीं है. 2 से 3 साल का मंथ का बच्चा अगर है तो उसे लाया गया मिल्क नहीं देना है, उसको ब्रेस्ट फेड ही कराना है. और अगर किसी रीजन की वजह से बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है या माँ का अवेलेबल नहीं है तो आप उसे फ्रेश मिल्क ही दें. और अगर शाम का लाया हुआ मिल्क है तो अगले दिन उसको बॉईल करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर पे लाने के बाद आप उसे फीड करा सकती है. प्रेफरेबली थोड़ा सा काउस मिल्क को उसमें आप वाटर मिक्स करके दे सकते हैं. वैसे तो जनरली इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप उसको किसी और तरह का मिल्क ऐड कराएं. सिर्फ ब्रेस्ट फेड मिल्क ही प्रोवाइड कराना इज द बेस्ट ऑप्शन. Anyone else? अगर किसी और बच्चे का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं. Even if you want to ask her कि एयरफोर्स में how did she go, कैसे वो एयरफोर्स में डाइटिशियन बनी, it is a good platform बच्चों. You can always ask her. It is an open platform. So if anyone has a question for her in that sense also आप पूछ सकते हो. I think I'm more kid than other students. I may request Dr. Sukirti to please give a brief about that. How did you enter to Air Force so that these shy girls can come upwards? Sure, ma'am, sure. Okay. Actually, ma'am, ये आपका I have done my BSc from CSE University, and after that I have done my MSc from CSE University only. And उसके बाद मैंने internship किया है 6 months का एम्स से. एंड उसके बाद 2 साल मैंने सरोजनी हॉस्पिटल में एंड कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल कानपुर में जॉब किया एज अ डाइटिशियन. तो एयरफोर्स में एंट्री के लिए एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है. और वो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आप MSc न्यूट्रिशन होना चाहिए आपका, प्लस साथ में 2 साल का 200 बेडेड हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. और इसका एज जो एलिजिबिलिटी है वो 30 इयर्स है. और इसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जनरली इसका एडवर्टीजमेंट निकलता है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप MSc न्यूट्रिशन कर चुके हैं और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आप करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज चेक करते रहिए, उसमें वैकेंसीज निकलती रहती हैं और वहां से आप उसको अप्लाई करके इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. Okay. That's great. Thank you. Sukirti, थोड़ा सा you can explain the girls and motivate them about life at Air Force. मतलब what is your work profile? आपका क्या routine रहता है? How do you deal? कौन से patients हैं जो आपके पास आते हैं? Is it only the Air Force people or it is other general public also? Please explain. श्योर डॉक्टर अंकिता. बेसिकली पेशेंट का जो एक्सपोजर है इट इज द सेम जैसे कि सिविल हॉस्पिटल्स में होता है, बट उनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो जाता है बिकॉज इट्स अ डिफेंस हॉस्पिटल. तो यहाँ पे हमारे पास एयरफोर्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो आते हैं, नेवी के आते हैं और आर्मी के जितने भी सर्विंग पर्सनल हैं, साथ ही साथ उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो भी यहाँ पे हम ट्रीट करते हैं. तो हमारा जो रूटीन रहता है वो ये रहता है कि वार्ड के पेशेंट्स हैं प्लस OPD पेशेंट्स हैं. तो जितने भी इन पेशेंट्स होते हैं उनको हमें ट्रीट करना होता है. पेशेंट्स जो ICU में है, ICCU में है और पोस्ट सर्जरी है, उनको हमें क्या डाइट देनी है, कौन सी फीडिंग स्टार्ट करनी है, पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है या एंट्रल न्यूट्रिशन देना है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्लान करके बताते हैं. साथ ही साथ OPD बेसिस पे जनरली लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स है उनको हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इस तरह के पेशेंट्स हमें ज्यादा
आते हैं, तो उनको हमें ट्रीट करना होता है। थैंक यू सो मच। यस मैम। हाँ, मैं बस छोटा सा उसके आगे कंटिन्यू कर रही थी। उनको भी जैसे फैमिलीज को, जैसे आप कह रहे हो कि आपको उन्हें बताना होता है, कन्विंस करना होता है, तो क्या ये जो उनको मोटिवेट करना है या जिस हद तक आप गाइड करते हैं, वो आप एक नॉर्मल हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं वो एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस कहीं आपका डिफरेंट होता है या करीब करीब सेम होता है? कैसा रहता है? नहीं मैम, वो बिल्कुल सेम रहता है, बस थोड़ा सा वही मैंने बताया ना, बैकग्राउंड का डिफरेंस है। बाकी उनका लाइफस्टाइल, बहुत जो काउंसलिंग होती है वो डिपेंड करती है कि वो करंट लाइफस्टाइल क्या फॉलो कर रहे हैं, राइट। सो उनका जो करंट लाइफस्टाइल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, स्पेशली जो सर्विंग पर्सनल है, बट बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजन, फैमिली हिस्ट्री, उनको भी कोई ना कोई इलनेस आ ही जाती है किसी ना किसी एज में, राइट। सो वो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उनको थोड़ा सा गाइड करना होता है। बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो कि इंटरनेट से सर्च करके पढ़ के फिर आते हैं हमारे पास, तो बहुत बार क्या होता है कि इंटरनेट पे जो कुछ सब कुछ लिखा वो सही नहीं है, राइट। सो हाँ, तो आपकी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, और इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो एक जनरलाइज्ड व्यू दिया रहता है। तो हमें उनको ये समझाना पड़ता है कि आप जो कर रहे हो उससे आपको क्या एक्स्ट्रा करना है, क्या नहीं करना है। तो कोशिश यही रहती है काउंसलिंग के दौरान कि एक पेशेंट अगर आपके पास आया है और वो कोई जनरल पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहा है या पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, तो आप उसे एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं बता सकते हो कि आप ये एकदम से ये छोड़ के आप ये करना शुरू कर दो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है जो सुबह से, जिसकी आदत है चाय पीने की, अगर वो रोज सुबह उठ के चाय पीता है, तो आप उसको स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते नहीं, चाय आपको पीनी ही नहीं है, राइट। सो आपको मॉडिफिकेशंस देने हैं उसको कि ठीक है, आप चाय पीते हो, आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो या उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो, और ग्रेजुअली आप नॉर्मल टी से ग्रीन टी पे शिफ्ट करो, और अगर पॉसिबल है तो आप उसको बंद कर दो, राइट। सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि वो करंट क्या फॉलो कर रहा है, उसका जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री क्या रहा है, और करंट क्या उसको डिसीजेस है, उसका वर्किंग पैटर्न कैसा है, सीडेंट्री है या उसका नाइट ड्यूटी तो नहीं चल रहा है। उन सब चीजों को देख करके हमें उसका प्लान करना पड़ता है, उसको काउंसिल करना पड़ता है। थैंक यू। Thank you so much, Sakirti ma'am, for this enlightening session. And now I invite Dr. Archana Singh, Associate Professor in the Institute of Home Science, to kindly deliver the vote of thanks for today's program. Over to you, Archana. जैसा कि आज आपने देखा कि गुड हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट और गुड न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। आज उसी मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो कि 1 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है, केंद्र विज्ञान संस्थान द्वारा पोषण सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वेबिनार लोकल फॉर पोषण बॉम टू एल्डरली, अर्थात पोषण के लिए लोकल से बुढ़ापे तक का किया गया, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक राय के मार्गदर्शन में किया गया। पर आज उनकी व्यस्तता की अनुपस्थिति में उनके मोटिवेशन के हम लोग को इतने जागरूक किया जाता है कि हम इस तरह के प्रोग्राम रहे हैं और वेबिनार में इस प्रोग्राम को बनाने के लिए उन्हें आहार विशेषज्ञ आभार व्यक्त करती हूँ कि जी आज आपने इतने सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस हर एज ग्रुप को, चाइल्डहुड से लेकर के एल्डरली तक बहुत सिंपल वे में बताया, जो कि आज जो कोरोना बीमारी चल रही है उसमें हम अपनी इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से अपने कोरोना से बचाव कर सकते हैं, क्या क्या अपने डाइट में बहुत ही जो सिंपल डाइट जो अपन रूटीन में लेते हैं उससे किस तरह से अपन को कर सकते हैं, आपने लैंग्वेज में बताया। अपने आईसीएस टीम की आभार व्यक्त यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रिजेश रावत का भी अपनी आईसीएस टीम की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। सर आपके ये इस टाइम का उन्होंने अपने केंद्र आयोजित किया है। इसके पश्चात सभी इंस्टीट्यूट से जुड़े फैकल्टी मेंबर,
व स्टूडेंट्स का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने पेशेंटली इस इन्फॉर्मेशन किस तरह से अपने डाइट सुकृति जी ने बड़े अच्छे से आपको बताया। मैं सोचती हूँ कि के लिए बड़ा मोटिवेशनल फील्ड में बहुत अच्छे से आपको बताया है कि वो में कमांडो है, किस तरह से पेशेंट को डील करती हैं, किस टाइप के पेशेंट आते हैं, किस तरह से गाइड कर सकते हैं, ये आपको सिंपल वे में बताया। जी अगेन मैं टीम की ओर से आपका आभार करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म करने के लिए आए टीम प्रोफेसर के साथ अमन गर्ग का भी धन्यवाद व्यक्त करती कि आप लोगों ने हम लोग को ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपना ये वेबिनार सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। मैं यही कहूँगी, स्टे सेफ एंड स्टे इसके स्पष्ट। Thank you very much, Archana ma'am. I request all the participants to please switch on their cameras. We'll take a group photo of the webinar. So I request everyone to please switch on their camera. All the participants can switch on their camera. I'm still waiting. Some people still have not switched on. Okay, girls, I'm taking a screenshot. So thank you everyone for the patient hearing and joining us today. And thank you everyone. Thank you so much. Thank you, Dr. Thank you. Thank you. नमन बंद मीटिंग ऑफ कर दीजिए। Ma'am, we'll leave. अच्छा hills. Okay, let us leave now. So, thank you.